We need to strike a balance between reality and virtual reality. We need to connect emotionally. We need to connect using our emotional intelligence. That is EI over AI. It's very important for all of us to understand when we have a great mix of human as well as technology, it's a great place to live. World is a great place to live because everything becomes smaller and nicer. We need to understand how we can have this terminology being understood in a much better way. As I said, emotions drive people and people drive performance. But how do we know how we are performing? How do we know that whether our performance is a tick mark or a cross? It's the human values that guide us. They are like the guidelines that help us to understand the difference between do's and don'ts, the rights and नमस्कार नमस्कार जी हाँ, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ब्रिज कुमार। तो अभी अभी आपने एक वीडियो को देखा और आपने सुना कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल महिला वहां पे स्टेज पे खड़ी होकर टेडेक्स के प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर के विश्व को बता रही थी कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन लाइफ को समझना, ह्यूमन बिहेवियर को समझना, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना। जी हाँ दोस्तों, आज के इस शो में दिल की बात ब्रिजवानी में आप सब देख रहे हैं और मैं लेकर के आया हूं डॉक्टर रूबी बख्शी कुर्दी जी को। डॉक्टर रूबी is a highly acclaimed, powerful speaker on emotional intelligence and women empowerment in the global market. She is a recipient of many national and international awards for conducting successful workshops across the world in United Nations, Geneva, London, Bahrain, India, Nepal, China, Paris, Portugal, Prague. अब मतलब कितनी कंट्रीज का मैं आपको नाम गिनवाऊं। Her contribution towards education and society has been recognized by World Book of Records UK. समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कितनी बड़ी बात है। और she was also featured on cover page of Elite Business Women magazine and Wow India. She has been interviewed on radio, TV and various channels as a global inspirational educationist. She is serving as honorary vice president of Global Goodwill Ambassadors, chairperson, All Ladies League, Women Economic Forum, ambassador, Female Wave of Change and Dylan's Watches. मतलब मैं कितना बताऊं इनके बारे में, जितना भी बताऊं कम है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सेमिनार्स वो करती हैं और सारे जो सेमिनार्स होते हैं वो सब इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और जबरदस्त तरीके से किया है। तो आइए वेलकम करते हैं हम इस शो में, जहां पे हम बातें करेंगे रूबी जी के साथ। रूबी जी, स्वागत है आपका दिल की बात ब्रिजवानी पे। कैसा महसूस कर रही हैं आप? आप अनम्यूट कर लीजिए अपनी माइक पहले। जी, ये हमेशा होता है, आई डोंट ब्लेम यू, ये हमेशा होता है, मेरे साथ तो कई बार होता है। Namaskar everyone. Namaskar Brij Bhai for inviting me on Brijwani. It's amazing. I'm feeling great. तो रूबी जी, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आप इतनी बिजी रहती हैं,
आपके इतने सेमिनार्स होते हैं, आप इतने लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, मतलब इंडिया के एक छोटे से शहर से निकलकर स्विट्जरलैंड जैसे ब्यूटीफुल कंट्री में आप आ गई। और मुझे याद आता है बचपन का वो दौर जब हम स्विट्जरलैंड को मूवीज में देखा करते थे, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में वो सरसों का जो खेत दिखता है, तो उसे हम देखते थे। तो सबसे पहले आप तो ये बताइए कि कैसे ये सब हुआ, कैसे ये कहानी थोड़ा सा अगर आप हमें ब्रीफ में बताएं कि कैसे इंडिया से यहाँ पे आपका आना हुआ। जी, इंडिया से आना वाज अगेन, जैसे आपने कहा, डीडीएलजे वाज द मेन सोर्स। अच्छा। सीइंग मूवीज में जब आप ऐसे देखते हैं तो आपको खुद लगता है वाह क्या जगह है, आई वुड आल्सो लाइक टू गो हियर। सो मैरिज बॉट मी हियर, माय राज वाज हियर, सो सिमरन उसके पीछे पीछे आ गई। अच्छा 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 अच्छा, क्या बात So है। my husband was working here. He is an expat. At that time, he was an expatriate working for a project. तो वो यहाँ पर थे. So it was supposed to be for a period of time because वो कुछ projects के लिए कुछ महीनों के लिए यहाँ पर थे. तो पेरेंट्स ने सोचा कि चलो शादी कर देते हैं. Like it was a very quick thing. चट मंगनी पट ब्याह वाला thing था because they said कि बाद में they will be coming back to India, so it's better like at least they can know each other because it was a arranged marriage. So he said it will be nice, we can have our own privacy to know each other better. So this was supposed to be for a period of 6 months that we were here, but वो 6 महीने 18 months हो गए, वो 18 months 2 साल हो गए, और उसके बाद now this is home. We got opportunities and my husband took those opportunities and me as well, and we are here for life now. This is home. Switzerland is home now. वाह 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 वाह, तो बड़ा अच्छा लगा। तो कभी आपके जो राज हैं, कभी आपके लिए उन्होंने गाया है तुझे देखा तो ये जाना सनम, कभी मतलब ऐसा हुआ है कि सरसों के खेत में आप दोनों भाग रहे हो और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का मतलब पूरा का पूरा? यहाँ पर ब्रिज भाई काश ऐसा होता, बट अच्छा ही इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, अ वेरी वेरी आई वुड से जो पढ़ाकू टाइप के लोग होते हैं ना इंडिया में, अच्छा 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 वो उस टाइप के हैं. टेक्निकल पर्सन, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द राज शोन इन द मूवीज. ही इज अच्छा। नॉट लाइक दैट. सो यस, उनके साथ आई गो ऑन द स्विस एल्प्स फॉर हम्म, ट्रेकिंग, फॉर क्या बात लविंग है। द नेचर. लाइक हम्म, उनको ट्रेकिंग का बहुत शौक है, उनको हम्म, माउंटेन्स पे घूमने फिरने का, लेक पे जाने का. उनको दोस्त, he likes those kind of things. So yes, we हम्म, do those kind of things a lot. हम्म, And उनसे गाने की जगह, गाने तो म्यूजिक कहीं पे भी चले तो I love dancing as well. So हम्म। he talks a lot. He अच्छा talks a lot about nature. He talks अच्छा। a lot about, उनको मूवीज का इतना शौक नहीं है. I'm more in हम्म, the filmy buff, but वो हम्म, मूवी से काफी दूर है. So it's like as we say, opposites attract. हम्म, So हमारे सिचुएशन में कुछ कुछ उस टाइप का है. We had arranged marriage. Both of us are Kashmiri Pandits, but we जी। had an arranged marriage. वो शांत हैं and I am like the bubbly type. He's a very very happy in his own space, and I am like I want people. I want the buzz of the people. So coming from Lucknow, city of Nawabs, मैं बहुत शान से कहती हूँ that मैं लखनऊ की हूँ, which is known as the city of Nawabs. I was thinking, जैसे movies में दिखाते हैं स्विट्जरलैंड, wow वाली जगह. It was wow wali jagah because I was with Sunil, my husband. But it was very quiet. It was very shant. It was not the same as, you always think when you get married, you will have the buzz and things like that. So of course, वो करने के लिए you need to have the right kind of ingredient. आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको बहुत चाहिए कि वो वाकई में दिल वाले दुल्हनिया टाइप का बन जाए. So as it's shown in movies, it's not the same, but you have to create the magic so that it becomes like that. And I really worked on that to make it like that. और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी आपकी, कि एक तो आप बहुत ही अच्छा, सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जो भी अभी सुन रहे हैं और जिन्होंने भी डॉक्टर रूबी को पहले सुना होगा, डॉक्टर रूबी यहाँ पे हमें कुछ आज सीरियस बातें करने के लिए यहाँ पे नहीं आई। आज मैं इस दिल की बात में मेरा पूरा जो उद्देश्य ये है कि आज रूबी जी को जानना है, उस लड़की को जानना है जो पूरे विश्व प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के बहुत कुछ सिखा रही है। आखिरकार वो रूबी बख्शी खुद
यहां तक पहुंचने के लिए जो एक स्ट्रगल होता है, जो एक कहानी होती है, कितनों की इंस्पिरेशन बनी हुई है। कितने लोग कहते हैं, मैंने इनकी पिछली इंटरव्यूज भी इनकी देखी, वहां पे कई लोग जुड़े, कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर रूबी, वी वांट टू बी लाइक यू, हाउ डू यू मैनेज सो मेनी थिंग्स, हाउ एक्चुअली आप जब करती हैं, जितने भी आप इवेंट्स करती हैं, आपकी बातों को सुन करके हम वी ऑल फील मोटिवेटेड। तो एक चीज मुझे जानना था रूबी जी, कि सबसे पहले तो आपको बचपन में कब ये लगा कि रूबी इज हियर फॉर डूइंग समथिंग एल्स, और रूबी में वो है जो पूरा विश्व उसे सुनना चाहेगा? ऐसा कब हुआ, कब आपको पता चला सबसे पहली बार? आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि ये टेडेक्स स्पीकर जो कि आजकल हर जगह इतना बोलती है, आई डोंट हैव टू थिंक, आई जस्ट स्टार्ट पट पट पट। आई वाज नॉट लाइक दैट। आई वाज अ वेरी शाय किड, you know. I was very happy in my own space, very much comfortable in my own space, but मेरे पेरेंट्स जो थे वो हमेशा मुझे कहते थे that you have to study, you have to be careful because world is not so rosy, you know. हर चीज आसानी से नहीं मिल जाती है, so you have to study, and only when you will study you will become self sufficient. So as a kid, you know, जैसे innocent बच्चे होते हैं, तो I used to think but I don't need to be self sufficient, आप दोनों हो ना, you know, you will take care of my things. So then because my grandparents would also live with us, sometimes my nani would live with us, sometimes with my dadaji would live with us, you know. हम हमेशा किसी ना किसी के साथ रहे हैं. So my grandmother was not very well educated, but she knew how to do her signatures. So I used to take एक स्केल लेके मैं उनको पढ़ाती थी. अपने एक ब्लैक बोर्ड लाके पेरेंट्स ने दिया हुआ था, तो उसपे मैं उनको ABCD पढ़ाती थी. So from the very beginning I was sure I have to become a teacher. But because I was so shy, मुझे लगता था मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगी, मैं कैसे करूंगी. So then I started doing it with my nanny, and I would tell her कि आप मेरी first student हो, I'm going to teach you, and only if you understand, that means I'm a good teacher. So teacher बनने का शौक मुझे बचपन से था. I would always want to be, you know, making people learn, making people do things जैसे मैं चाहती हूँ वैसे बच्चे करें. And मैंने बचपन में ऐसी बहुत शरारतें की हैं. Even though I was a quiet one, कोई समझ नहीं पाता था कि मैं शरारतें कर सकती हूँ, because मैं इतनी शांत और इतनी अच्छा बच्चा वाला इमेज मेरा था, that I will do the mischiefs, but people will say नहीं, रूबी तो कर ही नहीं सकती है, वो कहाँ करेगी. And I used to make other kids sometimes, like, you know, do things and tell, अगर आप नहीं करोगे ना, देखो भगवान जी, शेरा वाली माँ है ना, उसका शेर आ जाएगा, आपको पकड़ लेगा. So now when I go to India sometimes, जैसे शादियों में जाते हैं, तो वो बच्चे जो तब बच्चे थे वो बड़े हो गए हैं, तो कहते रूबी दीदी आप पहले हमारे साथ ऐसे बहुत करती थी. मुझे सच्ची मैं तो ऐसे नहीं करती थी. And they would say, नहीं आप ऐसे बहुत करती थी. So there were a lot of people, you know, lots and lots of people who were there. When they would see me as a kid, they would say that she will do something different. But वो क्या different है वो मुझे कभी नहीं पता था, and I had never thought what is happening now it will be like this. This was completely unplanned. तो जो ये अनप्लान चीजें होती है ना, मुझे लगता है ये सबसे खूबसूरत होती है. जब आप बहुत सारी चीजें प्लान करके करते हैं ना जी, तो एक बात तो ये होती है कि जब आप खुद अपनी मेहनत से कुछ अचीव करते हो तो उसकी जो वैल्यू होती है, और मैंने ये रियलाइज किया है कि जब मैं आपको सुनता हूं, जब आपकी इंटरव्यूज सुनता हूं, या फिर जब मैं आपके बाकी के सेमिनार्स को सुनता हूं, स्पीचेस सुनता हूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपने जिंदगी को बहुत ही करीब से देखा है, उन लम्हों को महसूस किया है. ऐसा नहीं है कि, और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि लोग पढ़ लिख कर विद्वान बन जाते हैं, लेकिन वो पढ़ा लिखा जो ज्ञान है, जिसे हम थियरी भी कह सकते हैं, अगर आपने थियरी को प्रैक्टिकली नहीं जिया तो फिर आप उसे उस तरीके से बाहर भी नहीं ला सकते हैं. तो मेरा अगला सवाल जो है ये है कि कैसा लगा, मतलब आप ऐसे भी सेमिनार्स करती थी, सब कुछ करती थी, आपने ये भी बताया कि आपकी पहली स्टूडेंट आपकी दादी थी, मेरी और वहीं नानी, से आपकी नानी थी, सॉरी, जी, तो आपकी नानी थी, और वहीं से सब कुछ शुरू हो गया, और पूत के जो पांव है वो पालने में दिख जाते हैं. ट्रेनिंग आपने वहां से शुरू कर दी, और आज आप पूरी दुनिया को ट्रेनिंग दे रही हैं. बहरीन की क्वीन ने आपको इनवाइट किया था, क्या है ये कहानी? ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको उन्होंने अप्रोच किया, आपको इनवाइट किया, और मतलब वहां की क्वीन आपसे कुछ सुनना चाहती थी. थोड़ा बताएं विस्तार में क्या हुआ. It happened 2 years ago.
completely in awe of the situation. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था that I would be invited in the Kingdom of Bahrain by Princess Sabika. तो उनका मुझे लेटर आया, उनका ईमेल लाइक प्रॉपर लेटर जैसे आता है, तो उसमें पूरा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया दैट दे वुड लाइक टू इनवाइट मी फॉर अ वुमेन एम्पावरमेंट सेमिनार. एंड उसमें पूरे like all over the world, people from, you know, different families, aristocratic families, royal families and embassies, ambassadors, ऐसे लोग आए थे. It was a huge place, like completely लग रहा था जैसे सुपर इनकी चमकार से पूरा कमरा भरा, like, you know, it's like so nice, it was flashing, the light was like as a सुपर इनकी चमकार हो, वैसी जगह थी. So when I went there, I was in awe of the place. Automatically, पहली बार तो मुझे ऐसा invitation आया. I went all the way to Bahrain, and when I'm there, the very first day, you know, I was when I'm getting out of the airplane, I'm greeted by the people from the royal, you know, royal guards who came to receive us. And मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ था. I'm a very normal, ordinary person. तो मैंने कभी ऐसा expect नहीं किया था. So instead of going the normal way, we went the other way, where I was, you know, received by the people, and we went in a जैसे दीवाने खास जैसी जगह होती है. हम लोग दीवाने आम से जाते हैं. So I went in the दीवाने खास, where he just said that give me your passport and boarding pass, and we'll get your things. Please, what would you like to have? So. You know, it all started like that, and then I was ushered in a very luxurious car, then in the hotel. Everything was like completely as if I was living a dream. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, and इतना अच्छा हर चीज हो रहा था. And thereafter in the afternoon they said this is your itinerary, and the king and the queen would like to meet you for a tea. So same day at 4 o'clock we went for a small जैसे दिखाते हैं टूर ऑफ द सिटी, तो वो करवाया, और फिर हम लोग उनके पैलेस में गए. And thereafter with some of the people from United Nations and some of the people from different embassies, ambassadors from different places, we were there. Like very few people, I would say रहे होंगे करीबन 20-21 लोग थे. And we had the time to talk, and बिल्कुल रूबरू जैसे सामने सामने बात करते हैं वैसे मैंने उनको देखा पहली बार. King and Queen, you know, I had never seen something like this before. So it was very like, you know, I was living a dream. And thereafter it was a 3 days session, like alag-alag din hum bol rahe the, and I was also in one of the sessions. It's on, it was there. I mean, I became such a big, you know, I felt that suddenly I become big, because वहां पर सबकी chairs जो थी सब पे लिखा था Her Highness, His Highness, His Excellency, Her Excellency, and on my chair it was written Her Excellency Dr. Ruby Bakshi Khurdi. Wow. So I felt like on top of the world. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, and I really felt very happy. And मुझे बहुत प्यार मिला बहरीन के लोगों से. I have very good souvenirs from the people of Bahrain and from the general, you know, the people who were there, the locals as well as people from the royal family. बहुत अच्छा था. And I always say that कभी दिल में आप expectations नहीं rखिए, you know, I did not expect this, and I got much more than what I had even thought about. क्या बात है, बहुत खूबसूरत. और समझने वाली बात ये भी है कि जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि जब आप कुछ चीजें प्लान नहीं करती और बिल्कुल ऐसे हो जाता है, तो उससे बढ़कर खुशी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज दे सकती है. रूबी जी, सॉरी डॉक्टर रूबी जी, क्योंकि डॉक्टर की जो ये डिग्री है इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो मैं उस डॉक्टर को मिस नहीं करूंगा. तो डॉक्टर रूबी जी, आपका एक प्यारा सा परिवार है, और मुझे जहां तक मालूम है बच्चे भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं. आप इतनी एक्टिव रहती हो सोशल मीडिया में, या फिर आपकी जो वर्चुअल मीटिंग्स हो रहे हैं, और जब आपके एनीवे जब लॉकडाउन से पहले आप इतनी बिजी रहती थी, तो परिवार, आपने कहा कि परिवार सबसे एक अहम हिस्सा बन जाता है आपकी सफलता की इस प्रयास में, इस लड़ाई में. तो क्या बताना चाहेंगे, कैसे परिवार आपके साथ कैसे जुड़ करके कैसे आपको सपोर्ट कर रहा है? आई थिंक फैमिली का सपोर्ट अगर ना हो तो ऑटोमेटिकली आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते. किसी भी, स्पेशली एज अ वुमन, इफ यू हैव टू बी डूइंग थिंग्स दैट यू लाइक, यू हैव टू हैव द सपोर्ट ऑफ योर हस्बैंड, योर पेरेंट्स आल्सो, एज वेल एज द किड्स. तो अगर आप लकी हो कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, सो देन तो सोने पे सुहागा. मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. इनफैक्ट ही इज ऑल द टाइम पुशिंग मी टू डू द थिंग्स
In fact, he was the one who pushed me to go further and start this sessions and seminars. Because पिछले कई सालों से ये सब जो आप देख रहे हैं, that I started speaking on different forums, it just started since last 3 years. 3 साल पहले मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी थे और हैं और हमेशा रहेंगे. But I was just teaching in the university, in the Swiss private universities. I was just teaching for last so many years. But मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं सेमिनार्स करूंगी या दूसरी कंट्रीज में जाऊंगी. इन पिछले 3 सालों में मैं बहुत सारी कंट्रीज में गई, मुझे बहुत सारे इनवाइट्स आए, एंड आई हैव स्टिल बीन गेटिंग, अब तो वर्चुअल बिकॉज ऑफ कोविड, इट्स ऑल वर्चुअल. But it was my husband who pushed me that you should go, because he could see that I like speaking and I am comfortable with my thoughts. मैं बहुत पैशनेट हूँ, जैसे women empowerment, emotional intelligence, these are some of the topics that I talk a lot, you know, and when I speak, I just feel connected कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ दुनिया को चेंज करने के लिए. मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ औरतों के लिए या बच्चों के लिए या आदमियों के लिए by connecting, you know, with emotional intelligence. So he was the one who kind of gave me the gentle push कि आपको जाना चाहिए. And दूसरा, you know, when you say kids, of course, it was my son, my little son, who created my YouTube channel. Wow. Wow. Because when I was invited for the TEDx, they asked me for some videos, and I said, I don't have any videos. I just like go, and sometimes I shoot and sometimes I don't. So ये सब जो है videos, pictures and proper professional videos लेना, you know, it started, my daughter was clicking these pictures, she was taking these videos, and my son, he created the YouTube channel because I was asked to give, you know, links about my videos, which I didn't have 3 years back. I didn't have. So my channel is very new. It's just two years old, and it's all because of my family, my husband, my son, as well as my daughter, who clubbed together to do all these things, you know, because itna, like, it's, as you see, you know, I'm doing so many things, so it's not possible कि मैं सब चीज कर सकती हूँ. जब तक support ना हो, जब तक you know, and I can't know everything. इतनी सारी technical चीजें भी मुझे नहीं पता हैं, जो कि मेरा छोटा सा बेटा मुझे बताता रहता है और मुझे सिखाता रहता है. So we are learning from our kids as well, and of course parents का support हमेशा रहता है. जैसे अगर बड़े जैसे साथ में होते हैं, जैसे अपने इंडिया में, you know, joint families में, when they are there, so they take partial responsibility. तो मेरे पेरेंट्स जब होते हैं यहाँ पर, इस बार वो नहीं आ पाए, but otherwise they take the partial responsibility, or my in-laws. So when they take the responsibility, then I'm able to do all these things आराम से. Even though we don't live in a joint family, but they come here, they often come here, and they take the support. So जब सब लोग मिल बांट के करते हैं काम, जैसे चार कार के जैसे 4 पहिए होते हैं, मैं ऐसे बोलती हूँ, तो हर पहिया अगर भरा हुआ है और पूरा एयर भरा हुआ है, तो सब कार बढ़िया चलती है, you know. बट एक भी पहिया अगर हवा कम है या थोड़ा सा पिचका हुआ है, तो वो कार डगमगा जाती है. एंड सेम इज एनी रिलेशनशिप. अगर स्पेशली एज अ वुमन, इफ यू हैव द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, यू कैन डू एनीथिंग. आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो और बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो. जी. और ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही. और हम हमेशा से सुनते रहे हैं कि परिवार और फ्रेंड्स और फैमिली जो हैं, ये मिलकर के आपको आगे बढ़ाते हैं. हालांकि बहुत पहले ये कहा गया था कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है. यहाँ पे थोड़ी सी कहानी अलग है. एक सफल महिला के पीछे एक आदमी का हाथ है. एक सफल आदमी का हाथ है, बहुत अच्छा हाथ है, स्ट्रॉन्ग हाथ है. बिल्कुल. और ये है कि हम दोनों ही एक दूसरे को, पति पत्नी एक दूसरे को मिल करके चलाते रहते हैं. और आपकी जितनी भी मैंने सुनी है, सेमिनार सुनी है, उसमें भी आप बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करती हैं, कॉन्फिडेंस बूस्टअप के बारे में बात करती हैं. अच्छा, ये नई चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस, इस पे बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं. फिर मेंटल हेल्थ पे भी बात हो रही है. तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा, आपकी कुछ यादों के बारे में, कुछ और भी चीजें. लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, और इतना इसे अभी हाईलाइटेड क्यों किया जा रहा है, और लोग इस पे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं. See, emotional intelligence is knowing yourself. जैसे it's a extended part of leadership. जैसे हर पर्सन एक लीडर होता है, हर एक में एक लीडरशिप क्वालिटी होती है. बट कुछ लोग आर लाइक रियली बॉर्न विद दोज स्किल्स. लाइक यू कैन सी दोज स्किल्स ब्राइट एंड क्लियर. जैसे आप हैं, आप कहीं पे भी कैसे भी बात कर सकते हैं. But there are some people who are not able to express themselves is because they are not confident. So emotional intelligence is knowing yourself. आप क्या हैं, you know, understanding yourself. So once you're comfortable with yourself, once you're comfortable in your space,
you will make an effort to connect with the people, and that is, it's basically two main components, like you, social, yourself, that is self, and connecting with the people, that is social. So social, if you see, emotion intelligence is like evolving as a person, कि आप जितना ज्यादा अपने में comfortable हैं, उतना आप दूसरे के साथ connect कर सकते हैं और दूसरे को control, like properly control कर सकते हैं in a good way, in a positive way, like in managing people. So we use this practically everywhere. जैसे अगर आप मैनेजर हैं, एक मैनेजर है, वो आपसे काम करवाना चाहता है, let's say, so he'll just use his power, मैं बॉस हूँ, ऐसे काम करो, so like he will do it like this. वो डेलीगेट कर देगा. No, not delegate. यहाँ पर मैं कह रही हूँ ऐसे, like because he's the boss, so he's showing power कि मैं कह रहा हूँ तो तुम ये करो, you know, like that. Okay, I got it. Yeah, whereas people who are emotionally intelligent, that boss will not tell the person like this, काम करो. He'll say, let's work together, because he will empathize with the people. He will connect with the people in such a way कि अगर मैं इनको अपने औहदे की वजह से काम करवा रहा हूं तो ये नहीं करेंगे, बट अगर मैं कहूंगा चलो हम सब काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, तो करेंगे. So that's why these days we are emphasizing more and more to use emotional intelligence, you know, इसलिए इतना ज्यादा ये I would say popular होता जा रहा है, because हमें इसकी बहुत जरूरत है, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, any sphere. Like the more you connect with people, जैसे the more you will be able to do it better as a person, you will evolve better as a person. जी, तो जब when we were taught about the managerial style, then we were said, like, you know, there are managers who are autocratic. Yes. यहाँ पे autocratic managers आ जाते हैं, जिनकी अब वो कहते हैं कि तुम्हें करना है, I'm not here to listen to you, I'm a boss, just do it. Yeah. है ना? तो autocratic managers जो है वो उनका बहुत कहते हैं ना कि रिकॉर्ड कुछ बहुत अच्छा नहीं होता. टीम क्योंकि हमेशा डरी रहती है और टीम को ऐसा लगता है कि मेरे से गलती हो सकती है और गलती हो जाती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता. तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए आज के इस दौर पे, तो हम एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं, है कि नहीं? जहां पे हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर के, आज लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ को एक ऐसी है कि जिसको आप देख नहीं सकते. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी बीमारियां दिख जाती है आपको, है ना? आप छींकते हैं, आपको कोल्ड है, आपको फीवर है, यू कैन फील इट, यू कैन, डॉक्टर कैन डायग्नोज इट इजीली. बट द ट्रबल हियर इज मेंटल हेल्थ, जिसको हम बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर देते हैं. जी, इस पे मैं आपकी राय लेना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए समाज को इस मेंटल हेल्थ को डायग्नोज करने के लिए, और कैसे हम एक्चुअली हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की जो इसका शिकार हो जाते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ब्रिज भाई. इट्स रियली ट्रू. द थिंग इज दैट, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, वी डोंट सी द साइंस so well because we are not connected with ourselves. And that's where emotional intelligence steps in. क्योंकि अगर आप अपने से connected हैं, अगर आप अपने को अच्छी तरह से जानते हैं, so आपको पता चलेगा, because body हमेशा signs देती है. There are always signs, there are always some alarming signals that you get कि अगर आपको कुछ भी हो रहा है, सर्दी, गर्मी, बरसात, इस टाइप की जो चीजें होती रहती हैं सबको, तो people ignore it. But there are certain things which are constantly happening, like stress, burnout, all these kind of things, you know, heart attacks. आजकल इतने young लोगों को heart attacks हो रहे हैं, इतने सारे people are getting diabetes at a young age. So all these things don't happen एकदम से. It has been happening over a period of time, and people ignore those small signals. And that's where you have to be at peace with yourself. आप हर एक को खुश नहीं कर सकते. There are lots and lots of people who are always trying to please others, always trying to make everyone happy, always trying to make sure that everyone gets what they are looking for. But इस सब भागदौड़ में आप अपने को भूल जाते हो, आप अपनी तरफ ध्यान नहीं देते हो, वो सबसे बड़ी बात है. And that's where you need to see, you know, that's where you need to see कि I'm not saying be selfish, but first try to look for yourself, be little bit you know, अपनी तरफ आप ध्यान देना शुरू करिए. As a person, as a kid, as any person, you first need to see yourself, because if you take care of yourself, self-care is a must, which everyone ignores. चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो बच्चे हो, normally हर कोई वो ignore करता है. So we don't have to ignore, and only when you pay attention on self-analysis, that means आपको अपनी तरफ पता चल रहा है कि ये मेरी खामियां हैं, ये मेरी खूबियां हैं. तो जो खामियां हैं आपको उस पे वर्क करना है. whether you need to go for, like, let's say you start getting very upset or very angry, या बहुत जल्दी tired हो जाते हैं, so instead of running to the doctor, पहले आप खुद देखो कि क्यों हो रहा है, what is causing that.
जो भी छोटी छोटी चीजें इधर उधर होती हैं आप उसको देखते रहो, बिकॉज इफ यू विल इग्नोर इट, इट्स जस्ट गोइंग टू बिकम बिगर एंड बिगर, एंड आप स्ट्रेस को बुला रहे हो, you're just inviting stress. So I think it's the call for action right now, that people need to pay attention on themselves first, because अगर आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपनी मशीनरी के ऊपर वर्क करोगे, you will be a better person, you will be able to take care of the future very well. अच्छा, तो डॉक्टर रूबी अपना देखभाल कैसे करती है? मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। नहीं, हम ये सीक्रेट जानना चाहेंगे कि डॉक्टर रूबी जो हमेशा बिजी रहती है, हमेशा सेमिनार्स में रहती है, अभी आप मेरे से जुड़ने से पहले आप किसी और वर्कशॉप में थी वर्चुअली, एंड यू आर ऑलवेज देयर, यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग। आई कैन जब भी मैं आपके फेसबुक या फिर ट्विटर हैंडल पे जाता हूं तो यू आर ऑलवेज देयर एंड डूइंग समथिंग, तो डॉक्टर रूबी अपने इस बिजी लाइफस्टाइल में, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं वक्त कहाँ है यार, कहने की बातें हैं ना, योगा अब हम कब करें, कब अपने आप को हम ध्यान देने लगे। कहना तो बहुत आसान है कि अब हम जो है बिजी हो गए हैं। सुनिए, मैं अपने अंदाज में बता रहा हूँ, मेरे जितने बिहारी मित्र हैं, जितने मेरे, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो कहते हैं भाई देख, भाषण देना अच्छा है, ठीक है, अब वक्त कहाँ है, टाइम कहाँ है, बताओ कब हम योगा करें, कब बीबी को जो है ब्यूटी पार्लर ले जाए, कब हम बच्चे को पार्क ले जाए। खाली बोल देते हो, तुमको तो बकना है, तुम बोल दिए। तो मैं जानना चाहूंगा रूबी जी से कि वो क्या एडवाइस करती हैं, क्योंकि आप बहुत बिजी रहती हैं, तो आप कैसे लुक आफ्टर करती हैं? ये टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। जी। नो, यू नीड टू प्रायोरिटाइज। आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है कि आपका डे कैसे है, लाइक क्या एक्टिविटीज हैं। So you have to have a to-do list. I call it to-do list. Like अपनी डायरी में, like you can have a digital diary or on your phone. You maintain your things. आपको दिन भर क्या करना है, क्या क्या एक्टिविटीज हैं। So जैसे जिन दिनों मैं पढ़ाती हूँ, जैसे लेक्चर्स जब देने होते हैं, तो मेरा टाइम उसमें लगा है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक I'm teaching. So that's there. But overall, I make sure that I nourish myself very well. I eat well, eat healthy. Okay. Exercise मैं भी ज्यादा नहीं करती हूँ. My husband is always after me because he's a very health freak. He does yoga every day. हाँ, वो योगा रोज करते हैं. He does yoga every day, and we both went for inner engineering course. But उनको inner engineering बहुत अच्छी लगी, and he's following it to T. But I am just following what I can follow. I don't overdo so much. So I just eat. I eat healthy. I listen to music, because it energizes me. I listen to music, I dance, and I go out. I go out for a walk. And मतलब आपके जो वर्कआउट प्लान है वो एंटरटेनिंग है, जो कि आपको एंटरटेन भी रखते हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूजिक हो। म्यूजिक से आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव रहती है, क्योंकि म्यूजिक कहते हैं हम, इससे बड़ा स्ट्रेस बस्टर और कुछ हो ही नहीं सकता। और जब आपने डांस कर लिया तो पूरे बॉडी का जो है वो ब्लड सर्कुलेशन ऐसे ही हो गया। एक बात मैंने सुनी अभी आपने बहुत जल्दबाजी में आप कह के निकल गई, इनर इंजीनियरिंग जी, इसके बारे में थोड़ा बताएं, है क्या ये? इनर इंजीनियरिंग इज अ कोर्स टू नो योरसेल्फ। ओके, ये अपने बारे में, लाइक आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, टॉक्सिक फूड्स, एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच विल मेक यू इवॉल्व एज अ बेटर पर्सन। सो ये कोर्स हमने ज्यूरिक में किया था. इट वाज 3 days कोर्स. And it was really nice. I really enjoyed doing the course because I met so many people while doing this course, and उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पता किया, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जाना कि क्या खाना चाहिए, कितने बजे तक खाना चाहिए, and all those kind of things. So it's like knowing आपके अंदर क्या चल रहा है, इनर इंजीनियरिंग, आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, एंड हाउ एग्जैक्टली बिकॉज कभी कभी जो हमारे अंदर होता है हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको इग्नोर करते हैं. एज वी जस्ट सेड, वी इग्नोर दीज थिंग्स, एंड दीज आर साइंस व्हिच वी डेफिनेटली नीड टू पे अटेंशन टू. बट व्हेन यू डोंट पे अटेंशन ऑन दीज साइंस, तो क्या होता है कि आप अपने उसमें यू कीप ऑन इग्नोरिंग दीज स्मॉल थिंग्स व्हिच मेक इट little bit like in a complete different way. आप समझ नहीं पाते कि मेरे अंदर ऐसा क्यों हो रहा है. So ये सदगुरु जी जो हैं हमारे, उन्होंने I guess gave this beautiful bug to everyone all over the world, even here in Europe. Lots and lots of people are doing this course and evolving as a person. So chantings, like I think I don't exercise so much, but when I listen to the chants जो वो share करते हैं, उनके कुछ videos हैं, so I listen to that. It's inner engineering videos by Sadhguru.
So if you watch those videos or if you just listen, like थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए भी अगर आपने अपने phone में लगा के सुन लिया, so it gives a lot of peace. It actually makes you a very quiet and very shant person. So as you know, I have a hectic schedule. Yes, I do. And most of my friends are telling me you are overdoing, because you should be in a habit to say no sometimes. I'm working on it. That is also a part of inner engineering ki I'm working on how I can say no sometimes, because मुझे हमेशा लगता है कि मैं कैसे उनको मना कर दूं, कैसे I should not be doing this because I don't want the person to feel bad. So that's also a part of inner engineering ki you can't please everyone. As I said, you have to take care of yourself. So do things that make you happy. So जब मैं लोगों के साथ में होती हूँ, and I do a lot of humanitarian tasks. I don't publish so much about those kind of things because I think that is something which is मन की बात, दिल की बात होती है. So I just do. And जब मैं वो चीजें करती हूँ, उससे मुझे बहुत positive energy मिलती है. Like even if I am sleeping at 1 o'clock or sometimes 2 o'clock because I'm connected with people in US or I'm connected with people in Africa, it gives me a lot of happiness. So I guess it's not just about exercising, it's about how you exercise your brain. अगर आप अंदर से खुश हो, अगर आप अंदर से कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, जिससे आपको फुलफिलमेंट मिलता है, then there's nothing doing, you will always evolve. Because अगर आप दूसरे के चेहरे पे हंसी देखते हो या दूसरे को देखते हो कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं और वो आपको इतने अच्छे लेटर्स लिखते हैं, इतनी अच्छी बातें लिखते हैं, that automatically I become happy and I forget my tiredness and it gives me more energy. नहीं, बिल्कुल सही. और आपके काम को बहुत जगह से रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है, बहुत से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. और मैं देखता रहता हूं कि पोस्ट आते रहते हैं, आपके सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस आते रहते हैं और आपने जो भी अचीव किया हुआ है. अच्छा, दी होल आइडिया वाज, आज मैं चाहता था, मैं ये कोशिश कर रहा था या जानने की कोशिश कर रहा था कि आज हम रूबी जी को जानेंगे. लेकिन जब रूबी जी बोलना शुरू करती हैं तो ऐसी बातें निकल के आती हैं कि मैं उन बातों की तरफ मुड़ जाता हूं. चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस की अभी बात हुई, फिर हमने थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेस पे बात होने लगी. मैं एक्चुअली चाहता था कि मैं सिर्फ रूबी जी की बात करूं, लेकिन अब जब इतना विद्वान आदमी सामने बैठा हो और इतनी अच्छी बातें कर रहा हो, एक्सपर्टीज हो इस फील्ड पे, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते. तो दर्शकों, मुझे माफ करना, मैंने आपको कहा था कि मैं बिल्कुल वो बातें नहीं करूंगा जो अक्सर रूबी जी कहती हैं, लेकिन अब क्या करें. देखिए, एंड आई सर्टेनली एंजॉयड इट, बिकॉज जो इनर इंजीनियरिंग की आपने बात की, जो अपने आप को समय देने की, और मुझे लगता है हम सब यहाँ पे मार खा रहे हैं अपने आप को समय देने की. अब जब फ्लाइट पे भी बैठते हैं तो सबसे पहली अनाउंसमेंट ये होती है कि अगर जब मास्क उतरे, मास्क वाली स्थिति आ जाए, है ना, फ्लाइट पे इमरजेंसी के दौरान, तो सबसे पहले उस मास्क को आपने खुद को पहनना है, फिर आप दूसरों की मदद कीजिए. जब आप अपने आप को ही फिट नहीं रखेंगे, अपने आप को ही ठीक नहीं रखेंगे, तो फिर आप विश्व कल्याण और दुनिया की भलाई की कैसे सोच सकते हैं. तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही. अब मैं रूबी जी से जानना चाहूंगा, डॉक्टर रूबी, क्या आप इंडिया मिस करती हैं, लखनऊ मिस करती हैं? बहुत. लखनऊ की क्या चीजें मिस करती हैं? लखनऊ तो it's my where I was born, so of course लखनऊ की गलियां, लखनऊ में फ्रेंड्स, मेरे स्कूल, कॉलेज, all the people, because मेरे पेरेंट्स उसी घर में है जहां पर हम रहते थे, जहां पे हम बड़े हुए. So I have very fond memories of the place. अब तो बहुत चेंज हो गया है, बहुत ही सुंदर हो गया है, काफी पहले से बेहतरीन हो गया है. When I was there, it was not having all these recreation things. बड़े पार्क बन गए हैं, काफी ब्यूटिफाई हो गया है. लखनऊ की चाट मिस करती हूँ, लखनऊ का खाना मिस करती हूँ. बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रहा है. I know, लखनऊ फूड के मामले में बहुत ही रिच है. Yes. And I'm a foodie. I love eating. So of course I miss लखनऊ की कुल्फी. वहाँ की प्रकाश कुल्फी बहुत फेमस है. It's a very well known all over. टुंडे के कबाब बहुत फेमस है अमीनाबाद. अच्छा, तो लखनऊ का एक अपना ये ना बोलने का भी अंदाज है जी. लखनवी लोग कुछ अपने अंदाज में बातें करते हैं, वो है अब तक कि खो गया वो कहीं? जी, वो है, अभी तक है. Because whenever I used to speak here, सब लोग कहते थे, जैसे I still say, हम जा रहे थे. So my husband would always say, कौन? He would look here and there. I said, हम. So he's like, what do you mean हम? You were going, so it's me. I was going. So I'm like, और ये
यूपी, झारखंड आप कह लीजिए, ये 3 जी। जगहों का नाम लूँगा। मैं भी बिहार से हूँ, तो मेरी भी जब भी बातें होती थी, अच्छा हम गए थे वहाँ पे। ये मेरा होता था कि अच्छा हम गए थे वहाँ पे, तो हमें कुछ दिखा ही नहीं। अब बंदा आगे पीछे देखे, सोचे कि अच्छा ये हम किसको कह रहा है? ये मेरे साथ भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अबे हम नहीं, तुम गए थे, ऐसे बताओ। जी, जी, जी। ये अपनी जो घर की बातें होती हैं, और जो कलर जो है वो हम सबसे ज्यादा मिस करते हैं। जैसे आप घर से बाहर निकले, गर्मी कितनी भी हो, प्रदूषण कितना भी हो, लेकिन सब अलग अलग डिफरेंट कलर्स जो पहन करके निकलते हैं, फूलों का रंग, वो मतलब सब कुछ एक ब्राइट ब्राइट सा दिखता है ना। वेरी ट्रू। तो बैक टू योर होम टाउन नाउ, या स्विट्जरलैंड। इसके बारे में बताइए, इस कंट्री के बारे में बताइए, क्या स्पेशल है इस कंट्री में, ताकि हम भी दौरे का प्लान करें जरा। जरूर जरूर, नाउ यू हैव ऑल द रीजंस टू कम, आई एम हियर ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, या इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पिक्चरस्क, जैसे आपको दिखाया जाता है मूवीज में, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। बहुत नीट एंड क्लीन है, नो पोल्यूशन। It's like snow-clad mountains. Like, you know, you can come here in summer or in winter. आप कभी भी आइए, हमेशा this country has something to offer. And it's like the beauty is mesmerizing, and you know, when you see the things, the roads, the people, यहाँ bus, train, सारे public transports are on time. अगर it's at 10:10, it will be at 10:10. 10:11 नहीं होता, 10:12 नहीं होता. So it's like too much time management, which I got my first lesson from here. कि अगर 10 बजे किसी ने बुलाया तो आपको 10 बजे ही पहुंचना है, 10:30 बजे नहीं पहुंचना है. It should not be become standard time. टाइम और पंक्चुअलिटी की जो बात है, हमें विश्व से सीखने की जरूरत है। जी जी। और खास करके जब हम इंडियंस की बात होती है, तो हम लोग टाइम के बड़े पक्के होते हैं, नहीं? बहुत बहुत ज्यादा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। बिल्कुल। शर्मा जी ने 10 बजे बुलाया था, तो दुबे जी जो है 11 बजे पहुंच के बोले कि देखो भाई, हम टाइम पे आ गए। तो ये होता है कि 1 घंटे का डिले कुछ डिले नहीं होता। ये बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं। और स्विस आप बोल लेती हैं थोड़ा बहुत? स्विस, फ्रेंच, मैं यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पार्ट में रहती हूँ, बिकॉज अच्छा। यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन। अच्छा, स्विस नाम की कोई लैंग्वेज नहीं है, तो मैंने खुद ही बना दिया ये। हाँ, ये आपने खुद बना लिया, बहुत अच्छा है। इट्स गुड टू बी इनोवेटिव, आप बनाते रहते हैं, आप बन भी जाता है। तो फ्रेंच है, इटालियन है और जर्मन और है। जर्मन, जी। अच्छा, या आई नेवर न्यू अबाउट इट। अच्छा, तो ये तीनों लैंग्वेज वहां पे बिल्कुल उसी लेवल पे बोली जाती है, या फिर कुछ ज्यादा कुछ कम है? जो जिस जगह के ज्यादा करीब रहता है, लाइक आई लिव इन द फ्रेंच पार्ट, तो यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। बट जब जो जर्मन के पास रहते हैं, जर्मन बॉर्डर, जैसे बर्न है जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, वहां जर्मन बोली जाती है। और जो इटालियन बॉर्डर के पास है, तो वो लोग इटालियन ज्यादा बोलते हैं। सो इट्स ऑल, जो जिस सिचुएशन में, लाइक जिस जगह के ज्यादा करीब है, वो लैंग्वेज वहां की होती है। तो अभी हम सबों को मालूम है, पूरा विश्व जो है लॉकडाउन में है, ऑलमोस्ट लॉकडाउन में है। कुछ जगहों पे लॉकडाउन खत्म है जी। कुछ जगहों पे थोड़ा कम है, कहीं पे ज्यादा है। वहां पे क्या सिचुएशन है? आज से थोड़ा सा चेंज आ गया है, लाइक अदरवाइज यहाँ पर फॉर लास्ट ऑलमोस्ट अ मंथ और सो सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद थे। खाली जो बेसिक कम्युनिटीज की चीजें होती हैं घर में खाने पीने की, वो सब चीजें मिल रही थी। रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद थे, एंड टेक अवेज चल रहे थे, बिकॉज काफी रेस्टोरेंट्स का लाइक यू नो काफी नुकसान हुआ, बिकॉज सब कुछ जब बंद है तो बिजनेस का काफी वो चल रहा था। जी जी। सो उस वजह से टेक अवेज चल रहे थे, पीपल कुड हैव टेक अवेज एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड पिछले 1 महीने से मैं घर से क्लासेस कर रही हूँ, बट अदरवाइज स्कूल चल रहे थे, बच्चों के स्कूल चल रहे हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इज ऑन, बट यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन जो है सब कुछ वर्चुअल चल रहा है। जी। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में था, मैं पूछना चाहता था कि रूबी बख्शी अपने बचपन को अपने बच्चों में देखती हैं, और क्या उन्हें ऐसा लगता है कि जो बचपन उन्होंने जिया, वो बचपन इन बच्चों को नसीब नहीं हो पाया? तो कहीं पे ऐसा आपको फील होता है? जैसे मैं ये फील करता हूँ कई बार, जब अपने बच्चे को देखता हूँ, तो मैं ये महसूस करता हूँ। तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता था कि एज ए मॉम, हाउ डू यू फील? I think they are in a different world altogether. I don't think that they are missing on something, because वो एक दौर था, ये दूसरा दौर है, और कुछ सालों बाद दूसरा दौर होगा. So we can't compare, you know, जो हमारे टाइम में था, that time technology was not that wow. So we did not have access to all these gadgets. Technical gadgets का access नहीं था, जो इन बच्चों को जैसे पैदा हुए नहीं, छोटा 1 साल का बच्चा भी सेल्फी ले रहा है या गेम्स खेल रहा है, you know. So it's too much. It's too much. But
but on the other side, if we think the positive side, you know, बच्चे are much more aware than what we were at that age. हमारा बचपन होता था खेलना, बाहर खेल रहे हैं, you know, डॉक्टर खेल रहे हैं, या लड़कियां गुड़िया के साथ खेल रही हैं, क्रिकेट, या एग्जैक्टली, आउटडोर ज्यादा होता था. अभी भी आउटडोर होता है, बट बिकॉज these gadgets have taken over, they are becoming more aware. ये वाले बच्चे थोड़े से अलग टाइप के, जैसे मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, so he is much more advanced, he knows so many things जो मुझे इस एज में भी नहीं पता है. They are more into virtual world now, isn't exactly it? They are more into virtual world, but as a parent I think we have to control that. We have to see that it's not excess of it. अगर हम उनके साथ फ्रेंड्स की तरह रहें और उनसे सीखें और उनके साथ में देखें वो क्या कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. देयर इज नो वे दैट यू नो बच्चा हाथ से निकल जाए, क्योंकि बच्चे तो तब भी हाथ से निकलते थे. उस जमाने में भी जब हम आउटडोर खेलते थे, बहुत जिनको निकलना होता तो निकल ही जाते हैं, चाहे आप उनको आउटडोर रखो या इंडोर रखो. सो I don't think I'm missing anything, but what I think is that, you know, our kids are more fortunate that they live in a world where they have more opportunities. They have more access to things which we did not have when we were small. So that way, I think it's a progressive, like it's going for betterment, except the technical part, except the too much of technology part. और यही चीज मुझे पसंद आती है आप में, कि मैंने सवाल बड़ा ही नेगेटिव सा पूछा था, मैंने बना दिया था पूरा नेगेटिव, लेकिन आपने उस नेगेटिव में से ही फिल्टर करके पॉजिटिविटी को निकाला और बताया कि देखो समय का दौर है और इस पे हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते. स्ट्रेस लेने से बेहतर है कि उनके साथ उस समय को एंजॉय करो और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि उनके साथ समय बिताया जाए और देखा जाए कि बच्चा इस वर्चुअल वर्ल्ड में कहीं खो ना जाए. इस बात का हमें ध्यान रखना है एज ए पेरेंट. ब्यूटीफुली सेड डॉक्टर रूबी. अच्छा, जब भी मैं सवाल पूछता हूं तो मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूं आपके आंसर के लिए, क्योंकि वो आंसर्स में हमेशा ये एक्सपेक्ट करके रखता हूँ कि अच्छा आ रहा है, अभी कुछ आएगा, कुछ बिल्कुल ही अलग आएगा. जो मैं जैसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका आंसर कुछ अलग ही आएगा. आपके क्वेश्चंस इतने अच्छे होते हैं, इतने मजेदार से होते हैं, अपने आप आंसर मजेदार हो जाता है. पता है कि जब मजेदार आदमी बैठा हो ना तो सवाल भी मजेदार खुद ब खुद बन जाते हैं. अब अगला सवाल, आप कुकिंग करती हैं? जी जी. तो मोस्टली क्या है, इंडियन कुकिंग होती है घर पे या फिर स्विस कुछ पक रहा होता है घर पे, क्या है? मिक्स ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज यहाँ पर जो स्कूलिंग सिस्टम है, मेरा बेटा घर आता है, लाइक आजकल थैंक्स टू द वर्चुअल क्लासेस दैट आई एम एबल टू बी विद हिम, तो मेरा बेटा घर आता है. बेटी तो स्कूल में ही खाती है, बट अदरवाइज स्कूल सिस्टम यहाँ पर ऐसा है कि बच्चे 1 घंटे के लिए घर आते हैं, उसमें खा पी के घर वापस स्कूल जा सकते हैं. अच्छा, बगल में है स्कूल, इसका मतलब यहाँ पर सिस्टम ऐसा ही है, जहाँ पर आप रहते हैं स्कूल पास में ही होते हैं, यू नो, सो यू डोंट हैव टू. हमारे यहाँ भी है, लेकिन मैं कहूंगा फिर भी 500 मीटर्स में भी. जी नहीं, इसका स्कूल तो ज्यादा दूर है. इट्स नॉट 500 meters. He has to take the bus to go to school. जी, बट सिंस द किड्स, वो 1 घंटे का ब्रेक मेन है, वो 1 घंटे का ब्रेक मेन है, वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ है. आई एम नॉट श्योर, मे बी जो मेरे को यूके के जितने भी लोग सुन रहे हैं, हो सकता है हो, क्योंकि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, तो अभी वो रिसेप्शन में गया है, सो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे वो 1 घंटे वाला है. सो दैट्स गुड, सो दे कैन स्टिल कम बैक टू होम एंड हैव देयर ब्रेक. तो यहाँ 2 घंटे का होता है, यहाँ वैसे 2 घंटे का होता है, बट नाउ दैट बिकॉज माई किड हैज डिफरेंट क्लासेस, तो उसका 1 ही घंटे का होता है अब. सो इट ऑल डिपेंड्स उनको क्या खाने का मन होता है. नॉर्मली इन द इवनिंग, क्योंकि खाना रात को सब साथ में खाते हैं, दिन में तो सबका साथ में खाना नहीं होता है, सो इवनिंग में हम लोग ट्राई करते हैं दैट वी हैव इंडियन. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इंडियन फूड एवरी डे. एंड बाकी दिन में जैसे कभी कभी बच्चों को होता है कि आज पास्ता बना दो, आज चाउमीन बना दो, या यू नो आज आई जस्ट वांट टू हैव अ पराठा. सो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून्स, इट ऑल डिपेंड्स. जो मेरे बेटे को पसंद है वो बनता है, बिकॉज यू नो ही इज देयर, ही डजंट वांट टू ईट समटाइम्स टू मच ऑफ इंडियन फूड और टू मच ऑफ समथिंग. ही सेज इट्स बोरिंग, यू नो. तो बच्चों को भी वैरायटी चाहिए. जी जी. डॉक्टर रूबी क्या पसंद करती हैं, उबलता हुआ चाय या फ्रॉथ वाली कॉफी? कॉफी. 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 कॉफी का स्वाद यहाँ जगह या फिर इंडिया से ही था वो? नहीं, मैंने कभी चाय नहीं पी है. आई हैव नेवर हैड टी इन माय लाइफ, या बट क्योंकि यहाँ पर जब आ गए तो यू नो व्हेन यू यूज्ड टू गो ऑन माउंटेन्स, तो बहुत ज्यादा सर्दी रहती थी, एंड कॉफी में फिर वो मजा नहीं लगता था. सो देन आई स्टार्टेड हैविंग ब्लैक टी विद लाइम, लाइक यू नो, थोड़ा नींबू के साथ में चाय बहुत अच्छी लगता है. दैट्स व्हाट आई ड्रिंक. नहीं तो फिर हमारी कश्मीरी चाय, वी हैव कहवा. सो वो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है. जब भी मम्मी पापा आते हैं तो वो हमेशा लेके आते हैं, तो वी हैव कहवा इन द हाउस. आइदर वी हैव कहवा एवरी डे इन द इवनिंग, नहीं तो फिर कॉफी. आई नीड टू हैव कॉफी इन द मॉर्निंग. Yeah, I love that tea, you know, the kahwa. Yeah.
this because I used to work in restaurant when I was in India. तो एक कश्मीरी रेस्टोरेंट था, तो वहाँ की तो मैं प्रॉपर yakni and the Kashmiri food. Oh, I used to love it. Especially जो टी उनका बनता था वो स्पेशल पॉट पे बनता था. जी, समोवार. हाँ, उसको समोवार कहते हैं जी. समोवार, yes. और प्रॉपर जो शेफ थे वो भी कश्मीर से आए थे. एक्चुअली हमने एक कश्मीर फेस्टिवल किया था, तो दैट इज हाउ आई केम टू नो अबाउट कश्मीरी फूड. इतना सॉफ्ट मीट, इतना टेंडर मीट उन्होंने पकाया था, और जो बिरयानी यखनी पुलाव जो थी वो टॉप क्लास. अभी तक वो स्वाद मेरे मुंह से नहीं गया. जाते जाते रूबी जी, आप ने कहा गाना आपके लिए स्ट्रेस बस्टर है. मैं ऐसे ही 2 लाइनें आपसे सुनना चाहूंगा, कुछ भी फेवरेट अगर हो. मुझे मालूम है आपके ज्यादातर इंटरव्यू में लोग आपको गाने के लिए नहीं कहते, आपसे सिर्फ ज्ञान की बातें सुनना चाहते, पर मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान की बातों के साथ साथ आपकी सुरीली आवाज भी. 2 लाइनें बस ऐसी ही सुना दे, मजा आ जाए. आपकी कोई भी फेवरेट हो. ओके जी. आई एम थिंकिंग, ये तो आपने मुझे एकदम से स्पॉटलाइट में डाल दिया. हाँ, वो मैं करता हूँ, ये मेरी थोड़ी सी बुरी आदत है, वो मैं करता हूँ क्योंकि खुद ही म्यूजिक से इतना जुड़ाव है, तो मैं किसी को बिना गाए नहीं जाने देता. ओके, आई सिंग अ ओल्ड सॉन्ग, क्योंकि मुझे नए गाने इतने आते नहीं है. मेरी मम्मी बहुत अच्छी सिंगर है, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे सिंगर है, तो उनके गाने सुन सुन के मुझे गाने मैंने सुने हैं और उनके गाने सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ. सो आई सिंग वन सॉन्ग व्हिच इज वेरी क्लोज टू मी एंड आई थिंक दैट्स वन सॉन्ग व्हिच आई नो वेरी वेल. ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों में छा गया है. ये दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों में छा गया है. मस्ती भरा तराना ये रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है. ला 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 ला. मस्ती भरा तराना ये रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है. दिल में कोई सितमगर अरमा जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों में छा गया है. ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों में छा गया है. वाओ वाओ वाओ, लव्ड इट. सी और मैं ना ऐसे वैसे को गाने के लिए नहीं कहता, कितना सच में मजा आया. आई एम सीरियस. दिल मुझे बता दे, बस इट्स ब्यूटीफुल, वेरी गुड यार, वेरी गुड. But I am not very I did not expect, because I love this song so I could sing it, but आपने मुझे वाकई में वो कहते हैं हॉट बटन पे रख दिया था. मैं करता रहता हूँ जब भी. अभी देखो, अभी डॉक्टर रूबी, मैं आपको एक बात बताऊं कि आज मेरे पास अभी भी इतनी बातें करने को है ना, बट अनफॉर्चुनेटली वी जस्ट गॉट 1 hour फॉर दिस शो. पर मैं जरूर आपसे एक बार फिर जुड़ूंगा, क्योंकि अभी भी बहुत सी बातें मुझे लगता है कि मैंने अभी रूबी जी को पूरा मतलब बोलने के लिए मौका ही नहीं दिया, और मेरे पास खुद की अपनी इतनी सवालें थी, अभी भी हैं. मतलब आई वॉज रियली इंजॉइंग, and I was going through all whatever the story you said about Lucknow and the food, and I was kind of, I put myself on those stories, and then once you can connect yourself, और फिर वो सारी जो है ना चीजें बनती चली जाती हैं. बिकॉज आपका शो ही ऐसा ना, ब्रिजवानी दिल की बात. सो दिल की बात निकलती जा रही है. सो वी डिडंट इवन नो टाइम बीतता जा रहा है. चला जा रहा है. मतलब आई कांट बिलीव कि 1 घंटे मतलब निकल गए यार. जी. और हमें ऐसा लग रहा है कि अभी 10 मिनट पहले हमने शुरू किया. बिकॉज आप भी इतने रॉकस्टार जैसे है ना, आप भी बहुत अच्छी तरह से बातें करते हैं, एंड योर क्वेश्चंस आर आल्सो सो गुड दैट इवन आई डिड नॉट रियलाइज द टाइम जस्ट पास्ड. Yeah, seriously, time goes so fast, स्पेशली जब इतने मजेदार 2 लोग जुड़े, और दोनों की मतलब कि ख्यालात भी एक दूसरे से मिल रहे हों और बातों बातों में. तो बहुत ही अच्छा लगा. डॉक्टर रूबी बख्शी कुर्दी जी, आज आप यहाँ पे जुड़ी, और आपके अचीवमेंट्स ऐसे ही आपको मिलते रहें, आप ऐसे ही दुनिया को कुछ ना कुछ बताती रहें. आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं. और बिफोर यू गो, एक आखिरी चीज, चलो 5 मिनट ऊपर हो जाए कोई बात नहीं है,
TEDx पे जब आप गई, वो कैसे हुआ? ये सवाल मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ? क्योंकि हमने शुरुआत ही उस वीडियो से की थी जहां पे आप लोगों को समझा रही थी, बता रही थी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। तो थोड़ा बताएं इसके बारे में कि TEDx की कहानी कैसे हुई? TEDx was one of the most exciting and life-changing event for me because it so happened same year 2018 में I got invited for 2 different TEDx talks. One was here in TEDx Switzerland और दूसरा था TEDx Netherlands. So दोनों जगह जाना था, but उसी साल it was like हर चीज was जैसे होता है ना, जैसे भगवान आपको सारे opportunities दे रहा है and you have to take the best opportunity. So I had to leave the TEDx in Netherlands because I couldn't go. उसी साल उसी दौरान I had been to, that was one of the most exciting months in November. I had been to 4 different countries in 4 different weeks. So one was Bahrain. The other was आपका UK. I had come to University of Wolverhampton for a music conference, for World Music Conference. I was speaking there. So that was the second one. Third one was in France. And the fourth week was here in Switzerland. So that was one exciting phase that मेरी बैंड बजी हुई थी क्योंकि मैं 4 जगहों से होके आई थी। बहरीन से तो आई थी और फिर जाना था आपके यूके जाना था। सो आई वाज वेरी टायर्ड, आई वाज वेरी सिक ड्यूरिंग दैट पीरियड, दैट फेज ऑफ टाइम आई वाज सिक। एंड जो आपने टेडेक्स में देखा होगा जो मैंने चश्मा लगाया था, इट वाज नॉट प्लान्ड, इट वाज नॉट एट ऑल प्लान्ड, बिकॉज उस दौरान मुझे कंजक्टिवाइटिस भी हो गया था। Because I was traveling so much, I was running fever. So for the TEDx, we were invited a day before in the hotel. It's a very luxurious hotel in Lyon, Cor Palace. So sare participants, we were 6 participants, and all 6 of us were invited a night before for get together and knowing each other. We had to stay in the hotel, but because I was so sick, I couldn't go. So I was in touch with them. I said, "Mera gala bhi kharab hai. I don't think fingers crossed. I want to speak." बट मुझे लग नहीं रहा है कि मैं बोल पाऊंगी क्योंकि मुझे बीमार था, मेरी तबीयत खराब थी, कंजक्टिवाइटिस था, एंड प्लस आवाज भी थोड़ी सी बैठ रही थी जी। बट एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था एंड वो चाह थी कि मुझे करना है। एंड एवरी स्पीकर लुक्स फॉर अ डे एंड TEDx इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स दैट मेक्स यू लाइक आई हैव टू हैव दिस। सो आई वेंट देयर, आई रेस्टेड द होल डे। जिस दिन जाना था, जैसे शाम को अगर लेट्स से मेरा 7 बजे था, so I'll reach there at 5 o'clock, even though सब लोग एक दिन पहले से आए हुए थे and they were enjoying the champagne, the luxury hotel and things like that. I went there and I had my glasses on. So the organizer asked me, "Why are you wearing glasses? Are you still not feeling well?" So I said, "I'm okay. It's not contagious anymore, but I prefer to keep it क्योंकि मुझे headache हो रहा है." He said, "Fine." And you won't believe, Brij bhai, just in those 2 hours, I immediately thought of it as a prop. Because I was going to speak about virtual reality. You connected that so well. Means I heard that the whole video. I went through it, and you connected so well with the virtual reality and all this stuff. Exactly. So that's why I thought maybe I use this as a virtual reality. And इससे पहले TEDx में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई sunglasses लगा के जा रहा है, like something like that. So when I did that, everyone was looking like, what is happening? She's come with sunglasses. It's pitch dark. कोई देख नहीं पा रहा। चलने में भी मुझे परेशानी हो रही थी, but लगाना था. And I had to use it as a prop. So when I used it as a prop, it became an instant hit. And I clicked with the audience immediately. And I think that was my turning point in life. After giving my TEDx talk and I being to Bahrain and all those 4 places in that month, November 2018 changed too many things for me. So it's most memorable. मैं बीमार थी, मेरी तबीयत खराब थी, but उस दौरान उसमें भी मैंने वो स्पीच दी। कोई नहीं बोल सकता। My students know, my staff knows, my staff and my students were there to cheer me up, and a lot of my friends from women networks were there. Like हमें कभी-कभी अपनी ये sisterhood वाले networks भी चाहिए होते हैं जो promote करते हैं एक दूसरे को। So they were there. उनको पता था, and जो who will be seeing your show, they will immediately resonate and remember कि उस वक्त मैं वाकई बीमार थी, लेकिन वो कहीं शो में दिख नहीं रहा है कि ऐसा था, because I was so energized, I was so happy and into it. It was like living my dream that I just went with the flow. It was like best experience of my life. I think if you wouldn't have told us, तो मैं तो बिल्कुल ही मतलब सोच नहीं सकता। और इतना बेहतरीन तरीके से आपने उसे कनेक्ट भी किया ना वो चश्मे को। और guys, you can actually watch that whole video if you can go to YouTube, and YouTube में आप इनका नाम डालें,
डॉक्टर रूबी बख्शी कुर्दी करके डालें आप और टेडेक्स डाल दें तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा. इट्स सच अ ब्यूटीफुल वीडियो. The way it is presented and as well the subject has been covered, so that's the main important thing कि इन्होंने जो सब्जेक्ट कवर किया है उसे तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सुने और बहुत कुछ सीखने के लिए. सबसे अच्छी बात यह है, मैंने जब उस वीडियो को देखा तो जब आपने चश्मा उतारा तो आपकी आंखों को देखकर लोग बड़े खुश हुए, तालियां बजी, सीटियां बजी. हाँ, ये मैंने देखा. तो माशाअल्लाह, भगवान ने आपको आंखें भी इतनी खूबसूरत दी हैं, तो चश्मे के पीछे छिपा लेंगी तो लोग तो नाराज होंगे, थोड़े से बेचारे परेशान होंगे. तो रूबी जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आप बहुत प्यार से जुड़ी, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला और मुझे पता है कि हम लोगों ने बहुत ही इसे क्विकली प्लान किया था. ऐसा भी नहीं था कि हमने इसे बहुत पहले प्लान किया था. और मुझे लगता है हम दोनों ही ऐसे लोग हैं कि अगर कुछ प्लान कर लें तो बस उसे गेट इट सॉर्टेड वाली हमारी है कि अब इसे करके खत्म करो. वी कांट, है ना. हम लोग दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के कि नहीं अब इसे कर ही दो. तो हम लोगों ने इसीलिए डे चुना और बोला कि चलो लेट्स डू इट. और क्या खूबसूरती से आपने मेरे पेचीदे सवालों के जवाब दिए और आपने जो अपनी आज दिल की बात रखी है इस दुनिया वालों के सामने, ये दिल से याद रखी जाएगी. दिल से आपने बात कही, हमने दिल से उसे सुनी. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके पतिदेव को भी, आपके राज को भी. उनका नाम क्या है? सॉरी, मैं अभी तक उनका नाम सुनील है. सुनील. तो सुनील भाई साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कहा कि ठीक है ब्रिज कह रहा है तो अटेंड कर लो, है ना. और बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी बेचारे आपके साथ हैं और दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू एज वेल. इस होल जो फैमिली सपोर्ट है ऐसे ही बना रहे और भगवान आपको ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे. इंडिया का नाम रोशन करते रहो, आगे बढ़ते रहो और विश्व को स्वामी विवेकानंद की तरह ही कुछ ना कुछ बताते रहो, कुछ ना कुछ सिखाते रहो. बहुत बहुत धन्यवाद. खुश रहो, आबाद रहो. थैंक यू सो मच ब्रिज भाई. आपके आशीर्वाद से मन गदगद हो रहा है. एंड ऐसे ही सब लोग एक साथ जुड़े रहें, सब लोग बड़े रहें और साथ में चलते रहें. दैट्स द अपील फॉर एवरीवन, स्पेशली ड्यूरिंग पेंडेमिक. ऐसे ही सब लोग साथ में बने रहें और ऐसे ही सपोर्ट करें. जैसे ब्रिज भाई इज सपोर्टिंग मी. इन्होंने मुझे बहुत ही हैज पुट मी इन अ पेडिस्टल. आई एम नॉट दैट ग्रेट, आई एम जस्ट अ ऑर्डिनरी पर्सन. बट थैंक यू फॉर गिविंग दिस रिकग्निशन एंड थैंक यू सो मच for saying these kind words. I think Ruby ji, we all are helping each other and it's all about being down to earth. जब तक आप down to earth रहते हैं, लोग एक दूसरे को पूछते हैं, लोग एक दूसरे को जानना चाहते हैं और ये सबसे जरूरी है. क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने मेरा शुक्रिया अदा किया, एक्चुअली मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने कम समय में ये कहा कि दिल की बात मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ. दिल की बात आपकी टॉपिक से थोड़ा हटकर था जिसमें आपको अपने बारे में ज्यादा बताना था, फिर भी आपने एक्सेप्ट किया और बहुत ही खूबसूरती से निभाया. तो चलिए लेते हैं अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद. फिर जुड़ेंगे क्योंकि अभी बहुत सारी कहानियां हैं, तो मैं रूबी जी से फिर जुड़ूंगा और आप लोगों को अपडेट रखूंगा. थैंक यू रूबी जी. थैंक यू सो मच. जी हाँ, अभी आपने दिल की बात में रूबी जी को सुना, डॉक्टर रूबी बख्शी कुर्दी जी को. इंडिया से आई और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन किया. कोशिश यही है कि ऐसे कुछ लोगों को हम लेकर के आए जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. बहुत सारे एनआरआईज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो देश को छोड़ने के बाद अपने देश के लिए ही बहुत कुछ कर रहे हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. ऐसे लोगों को मंच देने की कोशिश करता ब्रिजवानी. और दिल की बात एक शो है जहां पे आकर के लोग जुड़ते हैं और अपने दिल की बात हमारे ऑडियंस के साथ करते हैं. आप लोगों के सपोर्ट के लिए, जो भी आज हमें देख रहे हैं, आप सबों का सपोर्ट बहुत ही अच्छे से मिल रहा है, बहुत ही प्यार मिल रहा है, आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, आपके सजेशंस मिल रहे हैं, आपके फीडबैक भी मिल रहे हैं, जहां आप बता रहे हैं कि ब्रिज अगली बार कुछ ऐसे लोगों को मैं सुनना चाहूंगा, कुछ ऐसे लोग अगर मंच पे आए तो अच्छा लगेगा. एक बात मैं आपको और बता दूं, सेलिब्रिटीज को मंच देने वाले तो बहुत से लोग हैं. सेलिब्रिटीज एक बार चुटकी बजाएंगे तो 10 टीवी चैनल उनके पीछे भागेंगे, मीडिया पीछे भागेंगे. लेकिन ये मंच उन लोगों के लिए है जो साइलेंटली काम कर रहे हैं, जो कैमरा शाय हैं, जिनको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं. चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हो, चाहे वो पोएट हो, चाहे किसी एनजीओ से जुड़े हों, कोई चैरिटी वर्क कर रहे हो. हर तरह के लोग
आएंगे, ब्रिजवानी के मंच से जुड़ेंगे और कोशिश यही होगी कि उनकी कहानी आप तक मैं लेकर के आऊं और उनसे आपके सामने दिल की बात करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार देते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि इस प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है। बाकियों को भी दे देना, पर मुझे अभी सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए।